Hello children, how are you all staying in this time of coronavirus crisis? World is facing it as a challenge before all of us. Yes, I was reading today's newspaper where the data was saying the total strength of patient of suffering from this disease from this coronavirus was 2.4 million, and death toll has goes as up as 1,67,986, and world is still counting. What is happening? You see this world scenario that deadly COVID-19 had gripped 184 countries. We have to use mask to go out. We have to stay in. The world is locked down due to this disease. And the age-old question is back. How this world is going to be ended? Age-old question is back again. People have started asking, how will this world end? Blame game has started. Nations are blaming each other. What do you say, children? How will this world end? I give you two options and you have to choose one among them. Those are fire and ice. Yes, मैं बात कर रहा हूँ आपकी सेकंड पॉइंट की. फर्स्ट फ्लाइट 10th क्लास स्टूडेंट, आई वेलकम यू ऑल टू माय न्यू क्लासरूम. और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना. Fire and Ice is the poem we are going to enjoy today, written by Robert Frost, 1874 born American poet, romantic poet. Romantic is not that romantic hero of Bollywood movies. Romantic poet होते हैं who appreciates beauty of nature. मैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बात कर रहा हूँ, जो नेचर पोइट रहे हैं. उनकी कृति हम आज पढ़ने वाले हैं फायर एंड आइस के रूप में. He saw the disaster of World War I and came out with this fire and ice. These poets are very creative. They look at the brighter side of things. Their observation power is great. ये सब हमारे आगे भी घटित होता है, लेकिन हम तो नहीं कोई पोइम लिख पाते. वो निराश होते हैं और हेमलॉक ट्री के नीचे बैठे हैं. क्रो शूक करता है, आइस उनके ऊपर गिरती है, तो डस्ट ऑफ स्नो पोइम निकल के आती है. यू जस्ट स्टडीड इन योर 10th क्लास योर पोइम 1. Passing through the forest, if they saw two roads diverged, what will come out? Bifrost, the road not taken, that you have studied in your 9th standard. So this poem, Fire and Ice, was written in way back in 1920s. बट देखिए कितनी रिलेवेंट है वो 2020 में भी. 1914 में जो वर्ल्ड वॉर हुआ उसका उन्होंने देखा डिस्ट्रक्शन, ये उनके माइंड में आया फायर एंड आइस लिखनी चाहिए. आज भी हम इस कोरोना वायरस के कारण वर्ल्ड वॉर 3 की कगार पर खड़े हैं. तो कितना रिलेवेंट है, देखिए आप क्या मैसेज देती है. लेट मी रिसाइट इट फर्स्ट फॉर यू. सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. देखिए आप, ग्रेट पॉइंट, छोटी सी पॉइंट. सतसैया के दोहरा जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगें घाव करे गंभीर. डस्ट ऑफ स्नो आपने देखी, जस्ट 8 लाइन्स. फायर एंड आइस 9 लाइन्स. देन व्हाई इन योर सिलेबस NCERT, what is this? Because it is having a great message for you. All time great message, relevant to all times. Fire and ice, relevant in 1920 and relevant in 2020. You are lucky that this poem is here. We can understand this crisis, this corona crisis, this mess by this virus. One nation is blaming other.
It is generated in your lab. What is this? ये फायर एंड आइस, ये कौन सी फायर एंड आइस है कि आज हमें लग रहा है कि वर्ल्ड समाप्ति की ओर है? वी आर हेडिंग टुवर्ड वर्ल्ड वॉर 3। ये कौन सी आग होगी? ये कौन सी आइस होगी? इज द सन गोइंग टू हॉटर एंड हॉटर and everything is going to be burnt in its heat, or the sun is going to be colder and colder, that everything is going to be frozen. So burning question is in this poem, theme कह लो आप, इसका टाइटल ही देख लो आप, कितना अच्छा दिया उसने, फायर एंड आइस, टू अपोजिट आइडियाज, फायर एंड आइस, कंट्रास्टिंग इन इटसेल्फ, फायर एंड आइस, ग्रेट। ये कौन सी फायर है? ये वो डिजायर है नंबर 1 बनने की, या दूसरे देश की डिजायर है कि कहीं मुझसे नंबर 1 की पोजीशन छीन ना जाए? क्या ये किसी शैतान के दिमाग की उपज है? लैब में बनाया गया है इसको? क्या चाहता है वो देश? डिजायर क्या है? ये फायर, इसकी बात हो रही है। ये आइस कौन सी है? ये हेटर्ड है एक दूसरे के प्रति। तो अगर हम जाएं लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करते हुए, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ कहते हैं, पोइट ने भी बात की किसी से, अपने दोस्त से, कि कैसे ख़त्म होगा। उसके दोस्त ने कहा फायर से होगा, आइस से होगा। तो अलग अलग ओपिनियन है। तो सम से, कुछ कहते हैं कि ये जो संसार ख़त्म होगा फायर से होगा, इतनी गर्मी हो जाएगी, हीट हो जाएगी। कौन सी हीट है ये समझना है बच्चों आपको। लिटरल मीनिंग मत लीजिए इसका, आग नहीं लग जाएगी। ये आग होगी डिज़ायर की। ये जो हो रहा है ये बायोलॉजिकल वेपन है, ये कोरोना भी। क्या थिंक, ये कौन सी आग है? इस आग में जलेंगे। कोई मीटेरॉइड नहीं आएगा ऊपर से, कोई उल्कापिंड नहीं आएगा जलता हुआ, पृथ्वी को नहीं जला देगा। ये आग होगी डिजायर की, एंगर की एक दूसरे के प्रति, इतनी कंपटीशन की, वेयर देयर इज नो सेटिस्फैक्शन। ये जला देगी इस धरती को, ये नफरत की आग। सम से इन आइस, तो क्या ये वाकई ही सब कुछ फ्रीज हो जाएगा क्या? नहीं। ये आइस कौन सी होगी जिससे इस वर्ल्ड का एंड हो सकता है? ह्यूमंस आपस में, नो लव, रिश्तों में ये ठंडापन, ये वाली आइस की बात हो रही है। इट्स नॉट दैट आइस की सब कुछ फ्रीज होने वाला है। इट्स आइस की दिलों में गर्मी नहीं है, फीलिंग्स में वार्मथ नहीं रहा। आप भी देखिए इंडिया में भी आफ्टर 1991, आफ्टर वी अडॉप्टेड दिस मार्केट इकोनॉमी के बाद क्या हो रहा है? बाजार अर्थव्यवस्था, ऑल आर रनिंग आफ्टर अर्निंग मनी एंड गेटिंग मटेरियलिस्टिक। नो वन केयर्स अबाउट एनीवन। रिश्तों में ठंडापन आ गया है, ये ठंडापन की बात हो रही है। फायर एंड आइस देखिए आप, ये डिजायर्स, ये रिश्तों का ठंडापन, टू गेट मटेरियलिस्टिक मोर एंड मोर, नो सेटिस्फैक्शन, दिस आइस, नो वार्मथ इन रिलेशंस, रिश्तों का ठंडापन, गर्मजोशी नहीं है, किसी का वेलकम भी नहीं करते हम ठीक से आजकल। घर में भी कोई आए तो क्यों आ गया ये? रिश्तों में ठंडापन आ गया है, वो बात नहीं रही है पहले वाली। डू यू एग्री विद मी और नॉट? गो टू कमेंट सेक्शन। आई वॉन्ट टू नो दिस फ्रॉम यू 10th class students. What do you think? We have no time for others. We are so self-centered. This ice, इस ठंडेपन की बात कर रहा है कि ये वर्ल्ड को ले डूबेगा। वो क्या कहता है आगे? From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. हालांकि मुझे मालूम है डिजायर का, मैं जानता हूं, और ये जो फायर है उसका फेवर हूं मैं। आइस की जगह ये फायर जो है ज़्यादा घातक सिद्ध होगी। ये कंपटीशन, ये डिज़ायर नंबर 1 बनने की, ये क्या हो रहा है? ये कोरोना भी क्या है? ये डिज़ायर ही तो है किसी देश की, टू गेट नंबर 1 पोजीशन। और इज इट बाय द नेशन हु इज ऑलरेडी एट नंबर 1 पोजीशन नॉट टू लूज नंबर 1 पोजीशन? I won't name any country,
But what is happening, 10th class students, you are mature enough to understand this thing. So relevant after even 100 years of its creation, fire and ice. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate. अगर इस वर्ल्ड को दोबारा समाप्त होना हुआ, पेरिस ट्वाइस, पेरिस मैंने डिस्ट्रक्शन, खत्म होना, तहस नहस दोबारा होना हुआ, मैं जानता हूं ये नफरत तो काफ़ी है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, ये आइस भी जो है इसको दोबारा खत्म करने के लिए काफ़ी है। इज ऑल्सो ग्रेट, पर्याप्त है। ये ठंडापन, रिश्तों का ठंडापन, नो वार्मथ, नो सेटिस्फैक्शन टू ग्रैब मोर एंड मोर मेटीरियलिस्टिक थिंग्स एंड वुड सफाइस, सफिशिएंट होंगी ये भी सफिशिएंट होंगी। और देखिए कितनी ग्रेट कृति रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, और कैसे उसने इसको ऑर्नामेंट किया है, इसको भी देख लेते हैं। मैं बात कर रहा हूँ फिगर ऑफ स्पीच की। बिल्कुल जैसे एक वुमन है, अ मैरिड वुमन, कैसे अपने आप को ऑर्नामेंट करती है, बैंगल्स, बिंदी। मैं आपको दिखाने वाला हूँ रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपनी इस क्रिएशन को कैसे ऑर्नामेंट किया है। इन फिगर ऑफ स्पीच ऑफ दिस पोम यू विल सी दिस इज वेरी वेल डेकोरेटेड, ornamented poem by Robert Frost. Some say, देखिए आप लाइन नंबर 1 and 2 में, this is called anaphora. These lines are starting with same words. This is called anaphora. Then you go, some say, yes, तो ये alliteration कहलाता है। मैंने रेड किया है एस और एस को ताकि आपको पता लग सके, और मैंने दोनों सम को भी ब्लू किया है। तो ये एनाफोरा और एलिट्रेशन के फाइन एग्जाम्पल हैं। एलिट्रेशन में क्या होता है कि जो रेपिटेशन है वो कंसोनेंट साउंड, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सम से दोनों बार आ रहा है, तो यहाँ पर एलिट्रेशन लगा हुआ है। और फोर्थ लाइन में आप देख रहे हैं आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, यहाँ पर आप देख रहे हैं ओ अगेन एंड अगेन, जो आप मैंने रेड किया है एजोनेंस का एग्जाम्पल है, वेयर अ वावल साउंड इज अकरिंग अगेन एंड अगेन विच इज नोटिसेबल। और कहाँ है एजोनेंस, वो हम डिस्कस करते हैं, आगे चलते हैं हम। यहाँ पर देखिए आप लाइन नंबर 6 में आप देख सकते हैं आई थिंक आई नो इनफ ऑफ। अब यहाँ पर जो है इस लाइन में आप देख रहे हैं आई और ओ का मैंने सारे आपके लिए रेड किए हैं ताकि आपको पता लगे कि अकरेंस ऑफ वावल साउंड अगेन एंड अगेन विच इज़ वेरी मच नोटिसेबल ऑल्सो, इट इज़ कॉल्ड एजोनेंस। Very beautifully decorated, as if these are not I and O, as if these are bangles. O is bangle of a woman and I is bindi of a woman. तो आप देख रहे हैं कवि ने भी बहुत सुंदर तरीके से अपनी कविता को सजाया है। और आप देख सकते हैं एक और फिगर ऑफ स्पीच की बात करें तो एंजॉयमेंट इज देयर, जहाँ पर टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट ऑल्सो वुड सफाइस। यहाँ पर आप देख रहे हैं बिना पंक्चुएशन के, बिना ब्रेक के, जैसे एक लाइन चली आ रही है ना। पोइम की जो लाइन है वो ख़त्म हो रही है, लेकिन जो उसकी थॉट है वो ख़त्म नहीं हो रही है। दैट आइडिया इज ट्रांसफर्ड इन नेक्स्ट लाइन, देन नेक्स्ट लाइन, दिस इज कॉल्ड एंजॉयमेंट। हम बात करते हैं राइम स्कीम की, तो इसके अंदर देखिए फर्स्ट का एंडिंग देखिए, लास्ट सिलेबस देखना होता है आपने राइम स्कीम की जब हम बात करते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, टेस्टीज ऑफ डिज़ायर फेवर फायर। तो आप देख रहे हैं लाइन नंबर 1, 3 and 4, ठीक है, ब्लू किया है मैंने आपके लिए। तो आप देख पा रहे हैं फायर, आइस, डिज़ायर, फायर, A फर्स्ट स्टैंजे की अगर हम बात करें तो इसके अंदर ये रहने वाली है, इसलिए मैंने सेकंड लाइन का जो लास्ट सिलेबल है उसको मैंने आइस को जो है रेड किया है, ताकि आप भी इसको देखें। सिमेट्री कलर से भी हम बना पाते हैं और सिलेबल भी हम देख रहे हैं एक जैसा साउंड दे रहा है। सिमिलरली सेकंड अगर स्टैंजा में जाते हैं हम, ट्वाइस, हेट। अब यहाँ पर देखिए जो सेकंड लाइन का आइस था और फिफ्थ लाइन का ट्वाइस है, तो यहाँ पर एक बार फिर से हम उसको रिलेट करेंगे और ये बनेगा बी। और आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, डिस्ट्रक्शन आइस, इट इज़ ग्रेट। अब हेट और ग्रेट मिल रहे हैं इसलिए उसको ब्राउन किया गया है, एंड वुड सफाइस। एक बार फिर से देखना चाहेंगे आप लाइन नंबर 2, 5, 7 and 9, सभी में जो सिलेबल है लास्ट वाला वो आइस
जो है हमें प्रोनाउंस कर रहा है, इसलिए इन सब को हम एक जैसा मानते हुए हम इसका बनाएंगे बी सी बी सी बी, ए बी ए और बी सी बी। इस तरह से इसकी राइम स्कीम रहेगी। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, कई बार पेपरों में आपसे पूछ लिया जाता है। तो चिल्ड्रन, इट शुड बी इनफ इन फायर एंड आइस दिस ब्यूटीफुल पोएम। हम देख लेते हैं वो कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो फ्रीक्वेंटली आपके फाइनल एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये आप देख पा रहे हैं, लास्ट ईयर ये पूछा गया था, व्हाट इज द सिंबल ऑफ फायर एंड दैट ऑफ आइस। आपने पोइम को पढ़ा, फायर इज सिंबल ऑफ ग्रीड, डिजायर, कॉन्फ्लिक्ट, फ्यूरी सिंबलाइजेज, और आई सिंबलाइज करता है हेटर्ड को, कोल्डनेस को, रिश्ते के ठंडेपन को, इनसेंसिटिविटी को, वी आर नॉट कंसर्न्ड ऑफ एनीवन एल्स, इनडिफरेंस, दिस रिजिडिटी। तो ये आप लिख सकते हैं, 2 नंबर का ये आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है थीम पर, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट द थीम ऑफ द पोएम फायर एंड आइस, और व्हाट इज द मेन आइडिया पूछ लिया जाए, एक ही बात है। द थीम ऑफ द पोएम इज द सेम एज ओल्ड क्वेश्चंस, द क्वेश्चन इज वेदर द वर्ल्ड इज गोइंग टू बी एंडेड बाय फायर और इन आइस। दिस पोएम इज अ डेलिब्रेशन ऑन द एंड ऑफ दिस वर्ल्ड। इसके अंदर यही चिंतन है, गहन चिंतन है कि वर्ल्ड का अंत कैसे होगा। सम पीपल से दैट वर्ल्ड विल एंड बाय फायर, बट सम पीपल से दैट एंड विल एंड बाय आइस। फायर इज सिंबल ऑफ मेंस, ये भी दे दीजिए, और डिजायर विच इज एंडलेस, एंड आइस इज सिंबल ऑफ हेटर्ड। तो डिजायर एंड हेट आर 2 deadly weapons of destruction. This is the theme and main idea of this poem. Next question is, what do different people say about the end of the world? Some people say, पहली और दूसरी लाइन इसका आंसर आप बनाएंगे पोइम का। Some people say that the world will end in fire, some say it will end in ice, as simple as that. So children, it should be enough in this poem, Fire and Ice, beautiful small one, but with a big message in it, very much relevant in this present time. Hope this video was helpful for you. But still, if you have any query, feel free to ask me by going to comment section. Definitely I am going to answer all your queries. I am coming with next video. Till then, stay good, stay home, wear mask. ठीक है, bye bye, thank you.